Good evening, Sanders. Okay, we are starting with the next chapter. As per our last discussion, we were supposed to start with a chapter called dividend policy, but some of the students who have their exams in November 2014 have requested that they would like to go through mutual funds and money market instruments first rather than dividend policy. So today we are starting off with the mutual funds. And dividend policy will be taken later on. So mutual funds is comparatively a smaller chapter and I would say an easier one. यहाँ पर आपके इतने बड़े कैलकुलेशंस कोई नहीं है जैसे हम लोगों ने पोर्टफोलियो या कैपिटल बजटिंग में किए थे. So I would consider it as an easier chapter. Now first of all we are going to understand what is mutual funds. And yes, Himmatnagar Center, don't worry. Dividend policy will also be taken and I'll make sure that all the chapters will be completed before your November exams. So don't worry about that. But I'm just changing the sequence, nothing else. So yes, as far as mutual fund is concerned, mutual fund is a trust. It is a trust which has been created by various people, and under this trust there will be different individuals who will be making an investment. Now, so mutual funds, which will be in short called MF. So if I talk about mutual fund is a pool of money Now it is a pool of money, which means that there are different people who are pulling the money from different other sources. So mutual fund is a pool of money based on the trust collected through a number of investors who share
a common goal of capital appreciation and dividend earnings. अब अगर आप लोगों ने सुना हो तो म्यूचुअल फंड हैज गॉट एन अमाउंट इन हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं कि कोई म्यूचुअल फंड ऐसा होगा जिसका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का है, कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसका इन्वेस्टमेंट 1200 करोड़ का है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिसके इन्वेस्टमेंट 1500 या 2000 करोड़ तक जाता है. This 1000 crores or 1200 crores or 1500 crores of investment, it would not be possible for a single individual to make such a big investment. So what they have thought of, they have created a trust or they have created an organization which will be called AMC. In terms of mutual fund concepts, we call it asset management companies. So those AMCs create a trust, and in this trust they will be collecting the money from small individual investors. हर एक इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा. कोई इंसान होगा जो एक महीने का 1000 रुपए करेगा, दूसरा इन्वेस्टर होगा जो एक महीने के 2000 करेगा, तीसरा इन्वेस्टर होगा जो महीने के 5000, या कोई किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी तो महीने के 10,000 करेगा. सो थ्रू दिस 1000 rupees or 2000 rupees or 5000 rupees or 10,000 rupees per month from small individual investors, they make a big fund or they make a big amount of 1000 crores or 1500 crores, and then they invest this entire amount in a particular segment. Now that is something which is called a mutual fund, and that is why it is said as a pool of money, because the money is pulled from small individual investors based on the trust which is collected through a number of investors. अब जो भी इंसान इन्वेस्ट कर रहा होगा, वो 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है या 5000 इन्वेस्ट कर रहा है या 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट के पीछे के दो ही कॉमन गोल्स होंगे. एक कि उसमें से उसे कुछ अर्निंग्स मिले विच विल बी नोन एज अवर डिविडेंड अर्निंग्स, एंड सेकंड कैपिटल अप्रिशिएट हो. So on the basis of this concept, the mutual funds are created or the mutual funds are working. अब मैंने जो आपको बोला कि 1000 करोड़ या 1200 करोड़ या 1500 करोड़, ये पैसा अगर इन्वेस्टर्स के पास से लिया जा रहा है तो उसके सामने आपको इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी तो देना पड़ेगा. So that money will be used at some particular place. तो वो कहां, तो जो भी पैसा यहां पर कलेक्ट किया जाता है वो पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है. दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड डेप्ट फंड. तो उसका मतलब यह है कि वो पैसा डिबेंचर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा. देयर आर समथिंग विच आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज फंड. तो वो पैसा उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है जो नेचुरल रिसोर्सेज के सेक्टर में काम करती है, और पावर सेक्टर फंड, और आई वुड से कैपिटल सेक्टर फंड और फार्मास्यूटिकल सेक्टर फंड, वॉट एवर इट इज. सो बेसिकली मनी collected through mutual funds, or I would say the money collected is invested in equity shares of different sectors or debentures
or bonds, or it can also be invested in foreign markets. I was discussing with a person today in the morning itself, a person who is working with ICICI Direct, who is an employee of a company which is dealing in the demat accounts and stock market related services. जो नई गवर्नमेंट हमारे देश में बनी है, the government is focusing on the inflow of 15,000 crore rupees through FDI and FII. मतलब we can expect 15,000 crore रुपए will be the inflow in our country. And the stock market, as per his words, the stock market is expected to go 30,000. मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ अलग है इसके बारे में, बट दैट इज व्हाट ही सेड. अब अगर इसी तरह से हमारे देश में पैसा आ रहा है तो हमारी देश के भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है या म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं. सो वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस फॉरेन मार्केट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स. सो दैट कुड बी देयर. जो इन्वेस्टर्स यहां पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, द इन्वेस्टर्स who invest money in mutual fund will get units of the mutual fund. अब ये जो यूनिट्स है, that is something which can be called your share in that mutual fund. जिस तरह से हम लोग अगर किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा उस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कितना है, that is converted in the denomination of shares. म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, that is denomination in the terms of units. So the investors who invest money in the mutual fund will get the units of the mutual fund at the unit value which is called NAV. That is what we can say, net asset value. That is something which is going to be calculated by us. So here mutual fund is the most common and convenient mode of investment for an individual investor due to diversified portfolio, professional management, good research team, etc. क्योंकि अगर हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्यादातर केसेस में ऐसा देखने को मिला है दैट द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और द शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. बट इफ यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड्स, देन द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी, इट विल बी हैपनिंग इन अ सेक्टर विच इज वेल डाइवर्सिफाइड. तो पूरे सेक्टर में या फिर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा. So that is something where your portfolio will be very well diversified. तो यहां पर इसके पीछे का रीजन यही है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो मैंने वहां पर लिखा था कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स की एक टीम होती है जिसके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं. सो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेक्टर और अ स्क्रिप्ट which is undervalued.
जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एंड विच हैज गॉट अ वेरी हाई growth potential or we got a potential to increase value. So here I am writing that mutual fund manager will always focus on script or sector which is undervalued and which is expected to increase. Mutual fund manager concentrates on the risk return trade-off which can maximize investors' wealth. तो जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो उसी चीज पर फोकस करेगा कि जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ सके या फिर शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ सके या फिर शेयर होल्डर्स का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन हो सके. Now we are talking about, or we are going to discuss about the constitution of the mutual funds. Constitution of the mutual funds involve various parties who are involved in the mutual fund and who are an integral part of a mutual fund. अब constitution की हम लोग बात करें, these are the things which will be there for your theoretical purpose. Constitution of म्यूचुअल फंड. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड में जो पहला मेंबर है दैट पर्सन इज नोन एज स्पॉन्सर. द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज इन द म्यूचुअल फंड इज नोन एज स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर इज समथिंग हु आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रमोटर. स्पॉन्सर कैन ऑल्सो बी नोन एज promoter, and that promoter is the person, or sponsor is the person who provides initial funds. जब तक छोटे छोटे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तब तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आने से पहले जो एक इनिशियल फंड इकट्ठा करना पड़ता है, दैट इनिशियल फंड इज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर. सेकंड इंपॉर्टेंट ऑथोरिटी इज ट्रस्टीज. Trustees are appointed by sponsors for the benefit of यूनिट होल्डर्स. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्पॉन्सर्स पीपल हु विल बी गिविंग द फंड, वो लोग शुरुआत का पैसा देंगे, वो लोग इस म्यूचुअल फंड को प्रमोट करेंगे, बट दे विल नॉट बी अ फुल टाइम और दे विल नॉट बी द पीपल फुल टाइम एसोसिएटेड विद द म्यूचुअल फंड. उनका काम शुरुआत के पैसे देने का है. तो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड का आई वुड से यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए वो लोग अपने बिहाफ पर काम करने के लिए ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हैं. सो दे विल बी ट्रस्टीज. थर्ड विल बी एएमसी, असेट
management company. This is something which can be called your mutual fund management company, or the professional management company which has got a good research base, and this is something who will be called your mutual fund manager. So asset management company is working as a manager for decision making on day-to-day basis. The next important party is custodian. Custodian is the storekeeper of mutual fund who keeps all title documents regarding mutual fund. Custodian is appointed by trustees. And the last person who is the part of mutual fund constitution is unit holders. And unit holders are no one but unit holders are investors who invest money in mutual fund. Now this is something which is the introduction of mutual fund. ये लिख लीजिए. Then we'll start with the formula and sums. इतना लिख लीजिए. यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. Otherwise copy it down and then we'll start with the formula and sums.
Now, as I said that there are different types of mutual funds where the money will be invested. So let's say जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि म्यूचुअल फंड के पैसे या तो इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाते हैं या फिर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से if mutual fund invests money in equity, it is something which will be called growth funds. अगर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ फंड्स. इफ म्यूचुअल fund invest money in debentures, then it is called income funds. If mutual fund invests money in both means equity and debenture both, then it is called balance funds. And if mutual fund invests money in BSE or NSE sector indices, then it is called index funds. So these are the different kind of funds which are there where the mutual fund will be investing its money. Now, as I said, NAV, net asset value, is something which is going to be calculated by us. So, अगर मैं बात करता हूं कि NAV of mutual fund is nothing but the market value of mutual fund. हो सकता है कि आपको मार्केट वैल्यू दी गई हो, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है देन वी assume it to be 10 rupees. So market value of mutual fund or NAV of mutual fund is rupees 10 per unit if not given. अगर नहीं दिया हुआ है then it will be taken at rupees 10. अब अगर हम लोग बात करते हैं कि उन रेट्स को कैसे समझा जाए कि आपको NAV की भी वैल्यू दी गई है वो वैल्यू किस तरह से अंडरस्टैंड की जाए या फिर किस तरह से समझी जाए, क्योंकि यहां पर म्यूचुअल फंड्स की NAV या म्यूचुअल फंड का जो रेट दिया गया होगा दैट इज इक्वल टू और दैट इज समवेयर गिवन लाइक योर फॉरेक्स रेट. जो आपका बिड रेट और आस्क रेट होता है जो आप लोगों ने फॉरेक्स में पढ़ा होगा, उस बिड रेट और आस्क रेट की तरह पर ही NAV के रेट्स आपको दिए जाएंगे. लेट अस टेक इट एग्जांपल एज एग्जांपल 24.50 स्लैश 24.75 रुपीज पर यूनिट. अब ये मेरे म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस है. नाउ द क्वेश्चन इज कि म्यूचुअल फंड के यूनिट के दो प्राइजेस कैसे हो सकते हैं. म्यूचुअल फंड के यूनिट के दो प्राइजेस इसलिए हो सकते हैं बिकॉज देयर इज वन प्राइस विच इज फॉर द परचेज एंड सेकेंड प्राइस इज फॉर द सेल. So understand this thing. अब यहां पर this is something where you can write your, मतलब इसी तरह से आप अपना बिड रेट और आस्क रेट रखते हो.
अब बिड रेट और आस्क रेट के हिसाब से हम लोग इसे नहीं समझेंगे. दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये जो बाद का रेट होगा, अगर दो रेट दिए हुए हैं, देन यू नीड टू टेक इट एज अ लेटर रेट. 24.75 रुपीज का जो रेट है, दिस रेट इज कॉल्ड परचेज रेट फॉर investors, or it can be called selling rate of mutual fund. So ये वो 24.75 is your that rate कि जिस रेट पर आपका म्यूचुअल फंड जो होगा वो म्यूचुअल फंड आपको बेचेगा या फिर इन्वेस्टर्स खरीदेंगे. So this is the rate at which entry of new investors will take place. इस रेट पर आपके नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेंगे. अब अगर मैं इस 24.50 के रेट की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस 24.50, 24 रुपए 50 पैसे की अगर मैं बात करूं, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड selling rate for investors, or it can be called repurchase rate for mutual fund. तो ये वो रेट होगा जिस रेट पर इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड सेल करेंगे और म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स खरीदेगा. So this is something which is called exit of investors. ये जो रेट होगा उस रेट पर इन्वेस्टर्स एग्जिट लेंगे. सो यहां पर हम लोग जो रेट कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट दिस रेट एज अ, अब हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, बट हम लोगों को जो रेट्स दिए जाएंगे ना, वो रेट्स हम लोगों को मेजरली म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाएंगे. सो वेन एवर वी हैव बीन गिवन द सेलिंग रेट, जब हम लोगों को क्वेश्चन में सेलिंग रेट दिया गया होगा, सेलिंग रेट का मतलब यह है कि उस रेट पर इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, एंड दैट रेट विल बी द एंट्री रेट ऑफ द इन्वेस्टर. और जिस दूसरा जो होगा वो हम लोगों को रीपर्चेज रेट दिया जाएगा, एंड रीपर्चेज रेट का मतलब है कि उस रेट पर इन्वेस्टर्स बाहर निकलेंगे. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय सेलिंग रेट, सेलिंग रेट का फॉर्मूला है सेलिंग रेट इक्वल्स टू एनएवी, जो हमारी नेट असेट वैल्यू होगी, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एंट्री लोड. जब भी कोई नया इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसे एनएवी के कुछ परसेंटेज अमाउंट एज एन एंट्री फीस देना पड़ता है, जिसे हम लोग एंट्री लोड कहते हैं. और जब वो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड बेचकर बाहर निकलना चाहता है, तब उसे बाहर निकलते वक्त भी कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, जिसे हम लोग एग्जिट लोड कहते हैं. दिस इज समथिंग विच कैन बी कॉल्ड अ ब्रोकरेज, कि आपको अगर एनएवी खरीदना है तो एंटर होने के लिए भी रेट पे करना पड़ेगा, विच इज एंट्री लोड. अगर आपको बेचकर बाहर निकलना है, सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू पे द एग्जिट लोड. सो दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड repurchase rate. So my repurchase rate will be NAV into 1 minus exit load. So these are the situations on the basis of which you will be calculating the selling rate and repurchase rate. अब अगर आप selling rate और repurchase rate दोनों को देखें, सो उन दोनों में एक चीज कॉमन है उन फॉर्मूलाज में, कि उन फॉर्मूलाज में एनएवी का यूज किया गया है. सो उन चीजों को कैलकुलेट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द
NAV. So we are going to write the formula for NAV and we are going to start the sums with that. कि हम लोग NAV कैलकुलेट करके उसके सम्स करेंगे and then we'll talk about that selling rate and repurchase rate. Now, the formula for NAV is net asset value. Net asset value को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स. आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू प्लस ऑल receivables minus all payables divided by number of units. So your market value of your investment plus receivables minus payables divided by number of units will give you NAV. So this is the formula for NAV. Starting with the first question. Look at question number 1. Your question number 1 says, the mutual fund in which you are investing, the name of the scheme is Money Plant, size of the scheme is 100 lakhs, face value of share 10 rupees, number of outstanding shares is 10 lakhs. तो आपके जो number of outstanding shares है that will become your number of units. So starting with the first question over here, number of outstanding shares which will be called your units is 10 lakhs. 10 lakhs is your number of outstanding shares. Market value of funds investment is 180 lakhs. So market value of investment 180 lakhs. Now your receivable 1 lakh और उसके साथ दिया हुआ है accrued income is 1 lakh. So if I talk about my total receivables, it will be 2 lakhs. मेरे total receivable 2 लाख के होंगे because it will be 1 lakh receivables plus 1 lakh accrued income. And then I'll be having payables. Liabilities are 50,000 and accrued expenses are 50,000. So my total liabilities, total payables will be 1 lakh because it will be 50,000 for liabilities plus 50,000 for accrued expenses. And the last sentence says that what is the NAV per unit. So यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे NAV. So मेरी NAV की फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल्स
minus payables divided by number of units. So ये है मेरी NAV की फॉर्मूला. यहां पर हम लोगों को सिर्फ फिगर्स रखनी है. My market value of investment is 180 lakhs. So 180 lakhs plus receivables 2 lakhs minus payable 1 lakhs divided by number of units 10 lakhs. So it will be 181 divided by 10. So 181 lakhs divided by 10 lakhs gives me an NAV of 18.1 rupee per unit. This is my NAV. Question number 2. Question number 2 says that Rajkot Center and all other centers, वहां पर जो आपका एक कॉलम है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, क्वेश्चन 1 में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में ₹10 लाख लिखा हुआ है, उसकी जगह पर 10 लाख यूनिट्स कर दीजिएगा या फिर 10 लाख शेयर्स लिख दीजिएगा. बिकॉज ज्ञानगंगा क्लासेस आपने जो क्वेरी रखी ना उसमें छोटा सा एक डाउट मैं रेस करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मेरे 10 लाख शेयर्स होंगे, मतलब आपने जो बोला कि इफ इट इज 10 नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज 10 लाख रुपीज, तो मेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख होने चाहिए. नहीं, वैसा नहीं है. अगर मेरे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 लाख है और पर शेयर ₹10 है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही मेरे म्यूचुअल फंड की टोटल फेस वैल्यू 100 लाख की होगी, वरना 100 लाख हो नहीं पाएगा. Face value is given is 10. If that face value is multiplied by 10 lakh shares, then only we will be able to get the size of the scheme as 100 lakh. हाँ, तो वो जो थर्ड इंफॉर्मेशन दी हुई है, फोर्थ इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, उसे 10 लाख शेयर्स या 10 लाख यूनिट्स कर दीजिएगा. ओके, योर क्वेश्चन नंबर 2 says that a mutual fund's balance sheet is as follows. Liabilities and assets, अब अगर मैं लायबिलिटीज की पहले रिसीवेबल्स देख लेते हैं. असेट्स की साइड आप देखिए, आप लोगों को इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दिए हुए हैं. तो असेट्स के साइड आपको जो इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दिया हुआ है, उसका मतलब है कि हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. दैट फिगर इज शोइंग 900 एंड 350. लेकिन उसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है जो नीचे के पैराग्राफ में दिया हुआ है. इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट मूव्स अप टू 1200 करोड़ and that of debenture moves down to 300 crores. So in question number 2, my first part would be market value of investment. Market value of investment. तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेरे 2 पार्ट आएंगे. इक्विटी जो 900 करोड़ की थी, जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़कर 1200 करोड़ हो गई है, और हम लोगों को मार्केट वैल्यू ही लेनी है. सो इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी 1200 करोड़ और मेरी डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कम होकर हो गई है 300 करोड़. माई टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 300 करोड़. अब बात करते हैं रिसीवेबल्स की.
उसी असेट्स साइड देखिए, रिसीवेबल्स में वी हैव गॉट टू थिंग्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड करंट असेट्स. सो उन दोनों का टोटल करेंगे तब जाकर हमारे रिसीवेबल्स होंगे. सो माय रिसीवेबल्स में फर्स्ट थिंग वुड बी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, which is of 145 crores, and current assets which is of 105 crores. So my total receivables will be 250 crores. और अगर मैं पेएबल्स की बात करूं, पेएबल्स में हमारे पास लायबिलिटी साइड देखिए, एक ही चीज दी हुई है, करंट लायबिलिटीज 150 करोड़. सो मेरी पेएबल्स में होगा करंट लायबिलिटीज 150 करोड़. और एक और चीज हमें चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स लायबिलिटी साइड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूनिट कैपिटल. $50 करोड़ यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच. सो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे 50 करोड़. सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, वी जस्ट नीड टू पुट दैट इन द फॉर्मूला. सो एनएवी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1500 करोड़ प्लस ऑल रिसीवेबल्स 250 करोड़ माइनस ऑल पेएबल्स 150 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 50 करोड़. So it will be 1600 crores divided by 50 crores. 32 rupees per unit will be my NAV. So this is the answer. क्वेश्चन नंबर 3 साथ में ही ले लेता हूं क्योंकि इसके रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट यूज द सेम बैलेंस शीट इन द प्रॉब्लम अबोव. तो हम लोगों को इस बैलेंस शीट को लेकर ही क्वेश्चन को कंसिडर करना है. द म्यूचुअल फंड सेल्स 20,000 यूनिट्स एंड रीपर्चेजेस 40,000 यूनिट्स एट एनएवी. व्हाट इज द एनएवी आफ्टर द सेल एंड रीपर्चेज. अब यहां पर देखिए, मैंने जो आप लोगों को यहां पर बताया था कि जब भी हम लोग सेल रेट की बात करेंगे या रीपर्चेज रेट की बात करेंगे, हम लोगों को एंट्री लोड और एग्जिट लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर कंसीडर करना पड़ेगा. लेकिन हम लोग एंट्री लोड और एग्जिट लोड तभी कंसीडर करेंगे जब हमारी एनएवीज अलग अलग होगी. सो थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू राइट अ नोट एज सेल एंड रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स are done as sale and repurchase of units are done at same NAV, there will not be change in the NAV of mutual fund. अगर सेल किसी और रेट पर हुआ होता या फिर रीपर्चेज किसी और रेट पर हुआ होता, then we would have taken that entry load and exit load into consideration and then the NAV would have been different. लेकिन यहां पर दो रीजंस है. एक तो सेल और रीपर्चेज एक ही रेट पर हुआ है, दूसरा हम लोगों को एंट्री लोड और एग्जिट लोड वैसे भी दिए हुए नहीं है. सो इन दैट केस आवर NAV विल रिमेन 32 rupees per unit and it will not change. So these are your first three questions, formula of NAV, and before that a brief introduction about the selling rate and repurchase rate and terminologies. Any doubts in this?
Centers, any doubts please? Okay, कॉपी कर लीजिए, then we'll start with the fourth one.
Okay, starting with question number 4. अगर okay, Bhavnagar Center has got a query that in question number 3 the net effect of 20,000 shares is to be given in the number of units. See, भावनगर सेंटर क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि हम लोगों को जो यूनिट्स सेल करने हैं या रीपरचेस करने हैं, दैट इज हैपनिंग एट द यूनिट प्राइस which we have calculated in question number 2. If you can look at the question 3, it says that the mutual fund sells 20,000 units and repurchases 40,000 units at NAV. तो हम लोग जो सेल या रीपरचेस कर रहे हैं वो इस NAV पर कर रहे हैं. अब ये जो NAV हम लोगों ने कैलकुलेट की थी तब वो 50,000 यूनिट्स की थी, सॉरी 50 करोड़ यूनिट्स की थी. 50 करोड़ यूनिट के बेसिस पर कैलकुलेट की हुई जो NAV आ रही है, इस NAV पर सेल या रीपरचेस हो रहा है. तो सेल या रीपरचेस होने की इफेक्ट इसके यूनिट्स पर करने की हमें जरूरत नहीं है. इट इज आस्किंग दैट कि सेल और रीपरचेस करने की वजह से NAV का रेट चेंज होगा या नहीं. सो यू आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन कि भाई यहां पर 20,000 हम लोग मतलब म्यूचुअल फंड 20,000 सेल कर रहा है और 40,000 बाईबैक कर रहा है, तो 20,000 की नेट इफेक्ट आएगी. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज समथिंग, दिस इज लाइक योर शेयर कैपिटल. अगर आप लोगों को मैं शेयर कैपिटल का आइडिया होगा ही, शायद मेरे से ज्यादा होगा, कि शेयर कैपिटल का जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, स्टॉक मार्केट में कोई 5 शेयर खरीदता है, कोई 10 शेयर बेचता है, कोई 25 शेयर खरीदता है, कोई 100 शेयर बेचता है. वो बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है, लेकिन योर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज गोइंग टू रिमेन सेम. मतलब आपकी म्यूचुअल फंड के 50 करोड़ यूनिट्स है, तो वो 50 करोड़ यूनिट्स तो वही के वही रहेंगे. यहां पर 20,000 सेल करके 40,000 बाईबैक किया, तो हमारे पास जो 20,000 है वो आज नहीं तो कल हम लोग सेल करेंगे ही, तो उसका कोई नेट इफेक्ट देने की जरूरत आपको नहीं है. ओके, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. All the centers, there is an announcement. According to schedule, there is my lecture tomorrow evening, but that lecture will be taken by Vinit Nagar sir instead of me. मेरी जगह पर विनीत सर लेक्चर लेंगे कल शाम का 6:30. क्वेश्चन नंबर 4. भावनगर सेंटर, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन में आपको क्वेरी है? गांधीधाम सेंटर, आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी टेकिंग द सेशन ऑन थर्सडे और नॉट, बट इफ आई एम गोइंग टू टेक, इट विल बी इन्फॉर्म टू यू.
Bhavnagar Center, I would request you to send the details of that question on email. The reason is मेरे हो सकता है कि मेरे पास जो प्रैक्टिस मैन्युअल है या आपके पास जो प्रैक्टिस मैन्युअल है उन दोनों के एडिशंस अलग अलग होंगे. So the question number may not be the same. So चलो करते हैं कुछ. Let us see. Question number 4. The NAV of my liquid fund is on January 2, 2002 was rupees 23.45. So my NAV was 23.45 rupees per unit. If the fund charged 2% as entry load and 0.25% as exit load, what are the sale and repurchase prices to the investor? So my entry load is 2%, so that will be 0.02, and my exit load is 0.25%, so that is 0.0025. That will be my entry load and exit load, and we need to calculate the sale price and repurchase price. So here सेल प्राइस की फॉर्मूला हम लोग वही लेंगे जो हम लोगों ने वहां पर लिखी थी. सेल प्राइस इक्वल्स टू NAV इंटू 1 प्लस entry load. So my NAV is 23.45. My entry load is 0.02 plus 1, so it will be 1.02. And my selling price will be 23.92 rupees. So selling price equals to 23.92 rupees per unit. And my repurchase price, will be NAV into 1 minus exit load. So that will be 23.45 into 1 minus 0.0025. So that will be 23.39 rupees per unit. So repurchase price will be 23.39 rupees per unit. So this is something which is a calculation of sale price and repurchase price. I hope there won't be any doubts in this. Question number 5. Question number 5 says that the NAV of a bond fund was 30.7250. The fund charged 1.25% as entry load and 1% as exit load. If the investor wants to invest rupees 16,000 into the fund, what number of units he will get? अब देखिए यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है कि हमारा NAV जो है दैट इज 30.7250. सो माय NAV इज rupees 30.7250. My entry load is
1.25% equals to 0.0125, and exit load is 1%, that is 0.01. अब यहां पर हम लोगों को पूछा गया है दैट इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट rupees 16,000, and we need to check how many units he will get. अब यहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है. जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है इसका मतलब है कि वो म्यूचुअल फंड में एंट्री ले रहा है. एंड वेन एवर ही इज एंटरिंग इन टू म्यूचुअल फंड, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर परचेस करेगा, और इन्वेस्टर परचेस करेगा तो म्यूचुअल फंड को सेल करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम लोगों को मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए वी नीड द सेलिंग प्राइस. सो हियर एज द इन्वेस्टर will purchase the units, we have to calculate selling price of mutual fund. हम लोगों को म्यूचुअल फंड की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हमारी सेलिंग प्राइस या सेलिंग रेट का फॉर्मूला है NAV इंटू 1 प्लस एंट्री लोड. सो इट विल बी 30.7250 इंटू 1.0125. सो माई सेलिंग प्राइस वुड बी 30.7250 into 1.0125, it will be 31.11. So my selling price will be 31.11 rupees per unit. And therefore my number of units will be equal to investment divided by NAV. So my investment is going to be 16,000 rupees. So NAV is my 31.11. So my number of units, or the number of units an investor will get, will be 514.30 units. 514.30 units. यहां पर आपके जो भी यूनिट्स आते हो उन यूनिट्स को राउंड ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में यूनिट्स कैन बी अलोकेटेड इन फ्रैक्शंस. तो अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही रखिएगा. वल्लभ विद्यानगर सेंटर हैज गॉट अ क्वेरी कि क्वेश्चन 4 में हम लोगों को जो सेलिंग प्राइस या रीपर्चेज प्राइस पूछी गई है, it is written that what are the sale price and repurchase price to the investor. See, whenever we talk about the sale price or repurchase price, it will always be from the point of view of the investor only, but we need to calculate the prices from the point of view of the mutual fund company. हम लोगों को म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी पड़ेगी. Look at this. If I talk about this sale price, now sale price जो भी हमारा होगा, so this is something which will be called the purchase price of investor, क्योंकि उसमें एंट्री लोड है, क्योंकि इस प्राइस पर इन्वेस्टर एंटर करेगा और यहां पर एग्जिट लोड है, तो इस प्राइस पर वो बाहर निकलेगा. सो दिस सेलिंग प्राइस एंड रीपर्चेज प्राइस आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर इन्वेस्टर, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी. So that is what we have calculated, and that is the same meaning we are having over here.
Okay. Any doubts in question number 5? Okay, looking at question number 6. Question number 6 ये कह रहा है the NAV of an equity fund is 33.15. The fund charged 1% as entry load and 1.25% as exit load. If an investor wants to withdraw, तो इन्वेस्टर विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड में से बाहर निकल रहा है. दैट मीन्स द इन्वेस्टर इज टेकिंग एन एग्जिट. इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड रीपर्चेस करेगा. सो इफ एन इन्वेस्टर wants to withdraw rupees 18,000 from the fund, what number of units he will repurchase? He will repurchase का मतलब है कि म्यूचुअल फंड will repurchase. यहां पर ही का मतलब प्लीज डोंट टेक इट एज इन्वेस्टर. पठानकोट सेंटर रॉन्ग. The NAV is given as NAV is 33.15 rupees per unit. My entry load is given as 1%, so it will be 0.01, and my exit load is given as 1.25%. So it is 0.0125. As investor wants to withdraw rupees 18,000 from mutual fund, the mutual fund will repurchase units. So we have to calculate repurchase price. So repurchase price will be NAV into 1 minus exit load. So it will be 33.15 into 1 minus 0.0125. So that is to be calculated. Okay. As we have already calculated, it is coming as 32.74 per unit. So it will be coming as 32.74 rupees per unit. So my number of units will be 18,000 divided by 32.74, and it will be giving me 549.8 549.79, or I would say 8 units. So this will be your answer. As most of you would have given the answer,
I don't think there would be any queries. Question number 7. The NAV of the bond fund is 40.15. The entry load and exit loads were 1.50 and 0.75% respectively. If the investor wants to redeem 6,000 units, what is the amount he will receive? So यहां पर एक चीज कॉमन है, हम लोगों को मतलब इन्वेस्टर वांट्स टू रिडीम, रिडीम का मतलब ये है कि विड्रॉ, लेकिन यहां पर वो विड्रॉ करना चाहता है 6000 यूनिट्स। तो यहां पर हम लोगों ने अमाउंट डिवाइड बाय एनएवी करके यूनिट्स फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एनएवी करेंगे तो हम लोगों को अमाउंट मिलेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, माय एनएवी इज 40.1500, my exit load is 0.75%. As we are going to consider repurchase price, हम लोग सिर्फ एग्जिट लोड ही कंसीडर कर रहे हैं, एंट्री लोड कंसीडर करने की कोई जरूरत भी नहीं है यहां पर। सो रीपर्चेस प्राइस विल बी एनएवी इंटू 1 माइनस एग्जिट लोड। So it will be 40.1500 into 1 minus 0.0075. So that will be 39.85 rupees. 39.85 rupees per unit. And here we will calculate amount received by investor by redeeming 6,000 units is equal to 6,000 into 39.85 will be 2,39,100 rupees. This is the amount the investor will receive. Any doubts? ठीक है, Gandhidham Center, sorry but I cannot be very sure about these things. So I would not be able to answer this. Have you copied all the questions? क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी हो गया है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कैंसिल करके वहां पर एक क्वेश्चन कर लेता हूं. दिस वुड बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे.
पहले क्वेश्चन 8 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन इन्वेस्टर होल्ड्स 1000 units in a bond fund. The current NAV is 12.45 rupees. So, bond fund holding of 1000 units, NAV is equal to 12.45 rupees per unit. He would like to switch his holdings to an equity fund whose NAV is 15.65. So equity fund, NAV is 15.65 rupees per unit. The investor wants to switch his funds from bond fund to equity fund. If the exit load from the bond fund is 0.50 and the entry load for equity fund is 0.75%, what is the value of his holding in the equity fund after switch? Okay. So bond fund का जो holding है, exit load for bond fund 0.50% and entry load for equity fund is 0.75%. सिंपल लॉजिक है कि हम लोग बॉन्ड फंड में से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो बॉन्ड फंड में से हम लोग एग्जिट हो रहे हैं, इसलिए एग्जिट लोड लगेगा, और इक्विटी फंड में एंट्री ले रहे हैं तो इसलिए एंट्री लोड लगेगा. सो I would say, let us start from the exit first of all. That amount realized from bond fund. Amount realized from bond fund will be equal to NAV into 1 minus exit load into 1000 यूनिट्स, क्योंकि हमारे बॉन्ड फंड में 1000 यूनिट्स का होल्डिंग है जो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं या जो हम लोग स्विच कर रहे हैं. सो 1000 यूनिट्स के हिसाब से मेरा एनएवी है 12.45. सो 12.45 इंटू 1 माइनस 0.0050 इंटू 1000. सो इट विल बी unit price will be 12.39 rupees. और I would say अगर हम लोग एग्जैक्ट भी गिनते हैं, so it will be 12.38775 multiplied by 1000 units will give me 12,387.75. 12,387.75 rupees. This amount switched and invested in इक्विटी फंड. ये अमाउंट हम लोग स्विच करके इक्विटी फंड में डालेंगे. इक्विटी फंड का हमारा सेलिंग रेट होगा
So selling rate of equity fund for mutual fund, because selling rate will be considered from the mutual fund company's point of view. So selling rate will be NAV into 1 plus entry load. So it will be equity fund की NAV है 15.65 into 1.0075. So that will be equal to 15.77 rupees per unit. 15.77 rupees per unit. और यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स इन इक्विटी फंड. Number of units in equity fund will be 12,387.75 divided by 15.77. So that will be 12,387.75 divided by 15.77 will give me 785.53 units. 785.53 यूनिट्स. मतलब हम लोग 1000 यूनिट्स बॉन्ड फंड में से स्विच करके अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अवर नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 785.53 यूनिट्स. और वहां पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज होल्डिंग इन द इक्विटी फंड. सो वैल्यू ऑफ होल्डिंग in equity fund will be equal to 12,387.75 rupees. Of course उसका होल्डिंग का वैल्यू तो उतना ही होगा जितना उसने बॉन्ड में से निकालकर स्विच किया है. और if you want to cross verify, you can do it like this: 785.53 units multiplied by 15.77. तो आंसर तो वही आएगा क्योंकि यहां पर हम लोगों ने उसी के हिसाब से तो यूनिट्स कैलकुलेट किए थे. सो योर वैल्यू ऑफ होल्डिंग विल बी 12,387.75. क्लियर? एनी डाउट्स? Okay. You have to do first 3 questions from homework. Homework side. Homework के part का question number 1, 2 and 3 is to be done. And that's all for the day. Hope you have enjoyed the session. Thank you so much. Good night. Take care. ये copy कर लीजिएगा. बच्चे પછી પેલી બાજુ પછી અહીંયા. Done? Good night.